Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 4, Object Oriented Database of Advanced DBMS. Topics to be covered are why Object Oriented Database, Object Relational Database System, Object Oriented Database System, implementation of Object Oriented Concept in Database, OODBMS versus Object Relational Database. So at the very beginning, the first question that basically arises in our mind is why we use object oriented database. देखिए आजकल जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को लेके आ रही हैं. सो डेटाबेस एप्लीकेशन जो है वो बैकबोन होती है हमारी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस के लिए. सो ये नेचुरल था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी का डेटाबेस के अंदर भी आना. सो इसलिए हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस. सो as we know, object oriented software development methodologies have become very popular in the development of the software system. Database applications are the backbone of most of these commercial business software developments. Therefore, it is natural that object technology also have impact on the database applications. Database models are being enhanced in computer system for the developing concept application. For example, a true hierarchical data representation like generalization hierarchy schema in the relational database would require a number of tables but could be very natural representation for an object oriented system. Thus, object oriented technology have found their own ways into the database technologies. The present day commercial RDBMS sports the feature of object oriented. बेसिकली अब जो हमारे पास डेटाबेस है RDBMS है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को फॉलो करता है. एज वी ऑल नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर वो होते हैं जिसमें हम लोग कुछ क्लासेस को लेके चलते हैं. क्लासेस के जो पर्टिकुलर वेरिएबल होते हैं दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट. नाउ क्वेश्चन अराइजेज बेसिकली क्लासेस क्या होती हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बाइंड करके एक पर्टिकुलर क्लास बना दी. लाइक हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल लाइक हमने व्हीकल्स का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बना दी जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्लास व्हीकल. सो an object oriented database is used for complex databases. Such database applications require complex interrelationship among object hierarchies to be represented in database system. These interrelationships are difficult to implement in relational database. Let us firstly discuss object oriented system in advanced application. So first of all, I want to discuss basically what are the limitation of relational database. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के हमारे पास बेसिकली कौन कौन से ड्रॉबैक थे, किस लिए हमारे पास नया कॉन्सेप्ट हम लोगों को लेके आना पड़ा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मूविंग टू अवर स्लाइड, सिमिलर इज रिटन इन अवर स्लाइड ऑल्सो. एन ऑब्जेक्ट database, like also object oriented database, is a database model in which information is represented in form of object as used in object oriented programming. इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती हैं उनको हम लोगों ने इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट में स्टोर किया है. ऑब्जेक्ट डेटाबेस आर अ nice field within the border DBMS market dominating by relational database management system. जैसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम आया उसने हमारे पास पुराने जो रिलेशनल डेटाबेस थे उन सॉफ्टवेयर्स को बेसिकली डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया. ऑब्जेक्ट डेटाबेस हैव बीन कंसीडर्ड सिंस द अर्ली 1980s and 1990s, but they have made little impact on middle stream commercial data processing, though there is some uses in the specialized area. So as we have already, what is the basic limitation of relational database? So relational database technology was not able to handle complex application systems such as computer aided design CAD, computer aided manufacturing CAM,
and computer integrated manufacturing, computer aided software engineering, etc. The limitation for the relational database is that they have been designed to represent entities and relationship in form of two-dimensional tables. Any complex interrelationship like multi-valued attribute or composite attribute may result in the decomposition of the table into several tables. Similarly, complex interrelationship result in a number of tables being created. Thus, the main aspect of the relational database, its simplicity for such application, is also one of its weakness in case of complex application. मेनली देखिए जो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस की मेनली ड्रॉबैक क्या रहता था कि हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते थे इन फॉर्म ऑफ ER डायग्राम, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप. बट जब हमारे पास वो एंटिटी मल्टी वैल्यूड हो जाती थी, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो जाता था, तो हम लोगों को अपनी टेबल को ब्रेकअप करना पड़ता था. तो उस पर हमारे पास मल्टीपल टेबल क्रिएट हो जाती थी और वो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस जो था वो हमारे पास कैड को, कैम को, जो हमारे पास एडवांस फीचर है उनको सपोर्ट नहीं करता था. सो एज उसके हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसलिए हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आया था, डेट इज़ अवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस. So as we know that now we can say that what's the need of object oriented database. So इसकी नीड की जब हम लोग बात करते हैं तो हम इसको कहेंगे relational database management system have certain limitation, but to overcome these type of limitation, उन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बनाया. द ऑब्जेक्ट में बी कॉम्प्लेक्स और दे मे कंसिस्ट ऑफ लो लेवल ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, a window object may consist of many simpler objects like menu bar, scroll bar, etc. However, to represent the data of these complex objects through relation database model, you would require many tables, at least one each from each inherited class and a table from base class. In order to ensure that these tables operate correctly, we would need to maintain a referential integrity constraint as well. So on the other hand, object-oriented model would represent such a system very naturally through an inheritance hierarchy. Thus, it is very natural choice for such a complex object. जब भी हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की बात करते थे, जब भी हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की बात करते तो हम उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को लेके चलते हैं. एज वी ऑल नो, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक फीचर रहते हैं, डेट इज़ इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, उनको भी हमारे पास डेटाबेस बेसिकली सपोर्ट करता है. सो जब मेरे पास हमारे पास बेसिकली एक सॉफ्टवेयर आ जाता है जहाँ पे मुझे बहुत सारी टेबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करके रखना है, जहाँ पे मेरे को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाना है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल की हेल्प से बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं. सो सिमिलर इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सिमिलर हमारे पास पर्टिकुलर स्लाइड में लिखा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड object relational database can be said to provide a middle ground between the relational database and object oriented database. So अब हमारे पास है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस कौन सा होगा जिसने मुझे प्रोवाइड किया एक मिडल ग्राउंड किस किस के बीच में, रिलेशनल डेटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस. सो इन ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस द अप्रोच इज एसेंशियली दैट द रिलेशनल डेटाबेस, the data residing in the database and is manipulated correctly with queries in the query language. अब हमने क्या किया है, उन दोनों को embed करके क्या बना दिया, बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम. सो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम have been enhanced to include the feature of object oriented paradigm. So some of the basic object oriented concepts have been basically covered in object relational database system. Now moving to our next slide. At the another extreme are OODBM, in which the database is essentially a precedent object store for the software written in object oriented programming language with programming API for sorting and retrieving object and little or no specific spot query.
देखिए अब हमने क्या किया है, इसमें हम लोगों जो क्वेरी लगाते थे सिंपल रिलेशनल डेटाबेस में, वो क्वेरी भी लगा सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स हैं हमने उनको भी प्रिवेंट करके रखा। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या थी। वी हैव यूज द टर्म कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप विदाउट डिफाइनिंग इट। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या थी। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हमारे पास बेसिकली ऐसा रहता है जहाँ पे हमें हाउस नंबर एंड अपार्टमेंट बताना है, लोकेलिटी बतानी है, सिटी बतानी है, स्टेट बतानी है, पिन बताना है। व्हेन यूजिंग RDBMS such information either needs to be represent as a set of attribute। तो हमें उनको क्या करना पड़ता था, सेट ऑफ एट्रीब्यूट में रिप्रेजेंट करना पड़ता था। लाइक मुझे किसी का एड्रेस बताना है तो मुझे उसमें डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट लेने पड़ेंगे, हाउस नंबर, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट, पिन, अब कंट्री। जब हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमें इतने सारे एट्रीब्यूट को ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द सेकेंड अप्रोच इज़ वेरी inflexible as it requires the complex string related operation for extracting information. If we represent the attribute of address as a separate attribute, then the problem would be with respect to writing queries. For example, if we need to find the address of a person, we need to specify all attributes that we have created for the address, that is house number, localities, pin. The question is there is any better way for representing such information? अब देखिए जब भी हमें एक पर्सन की इंफॉर्मेशन को निकालना था तो हमें देना पड़ता था उसका हाउस नंबर क्या है, लोकेलिटी क्या है, स्टेट क्या है, पिन कैसा है। अब हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफाई करना पड़ता था। तो एक बेसिक क्वेश्चन जो माइंड में अराइज होता था कि बेसिकली हम कोई ऐसी अप्रोच लगा सकते हैं कि हमें इतने सारे मेथोलॉजी को सॉल्व भी ना करना पड़े। यस, वी कैन डू दैट। तो हम उसको कर सकते थे। उसको हम लोग किसकी हेल्प से कर सकते हैं, दैट इज़ अवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम के हेल्प से। इफ देयर इज अ मॉडल सच ऑफ रिप्रेजेंटिंग, देन दैट रिप्रेजेंटेशन शुड परमिट द डिस्टिंग्विशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द डेटाबेस। तो हम उसके डिस्टिंग्विशन के लिए बेसिकली यूज कर लेते थे। नाउ मूविंग टू अवर स्लाइड, ऑब्जेक्ट डेटाबेस based on precedent programming acquired as in the application areas such as engineering, spectral database, telecommunication and scientific areas such as high energy physics and molecular biology. They have made little impact on the mainstream commercial data processing, though there is some uses in specialized area of financial services. It is also worth noting that object database held the record for the world's largest database, being the first to hold over 1000 terabyte at the Standard Linear Accelerator Center, the highest ingest rate ever recorded for the commercial database at over 1 terabyte per hour. बेसिकली देखिए अब इसने बता रखा है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी बेसिक नीड कहाँ थी। जब हम लोग साइंस, मॉलिक्यूल्स, टेलीकम्युनिकेशन की डेटा की जहाँ भी बात करते थे वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम की। हम लोग इसमें हम लोगों ने क्या किया, इनहेरिट किया SQL की क्वेरी को, उस SQL की क्वेरी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को लगा के चले, तो उससे हमारे पास क्या आया, एक नई क्वेरी को जनरेट हुआ जिसकी हेल्प से हम लोग बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं हम अपने पर्टिकुलर कंडीशन को। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन डेटाबेस। अब हमने अपने डेटाबेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को कैसे बेसिकली इम्प्लीमेंट किया, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। एज वी नो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है हमारे डेटाबेस में, वो बहुत एक मेजर रोल को प्ले करती है। देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी बेसिकली क्या है, हाउ फंक्शन आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। हमारे फंक्शन के में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वो किस टाइप से डिपेंडेंट हैं, दैट इज़ अवर फंक्शनल डिपेंडेंसी। मूविंग टू अवर स्लाइड, हम अपने स्लाइड पे मूव करते हैं।
Functional dependency plays an important role in the relational database design. They have designed in the context of single relation which are all times must contain tuple with known null entities. अब ये कहाँ थे, जो मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ को कंटेन करते हैं जिसमें मेरे पास नॉन वैल्यू एंटिटीज़ होती हैं. सो वी कैन से दैट the RDBMS technology has been enhanced over a period of last 2 decades. The RDBMS are based upon theory of relationship and thus are developed on the basis of proven mathematical background. Hence, they have been proved to be working correctly. Thus, it may be a good idea to include the concept of object oriented so that they are able to spot object oriented technology too. The first two concepts they are added include the concept of complex types and inheritance and some newer types such as multiset and arrays. One of the key concern in object relational database are storage of tables that would be needed to represent inherited table and representation of newer type. बेसिकली जब हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की बात की तो हमने इसको इम्प्लीमेंट किया RDBMS की टेक्नोलॉजीज़ के साथ, उसको एनहेंस किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेसिक फीचर्स के साथ, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली इनहेरिटेंस यूज़ किया और कॉम्प्लेक्स टाइप्स यूज़ की. सो वन ऑफ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इनहेरिटेड टेबल्स, अब हमने इसमें इनहेरिटेंस यूज़ किया तो टेबल में हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगा के करा कि कुछ टपल हमारे पास ऑलरेडी हैं तो हमने अपने बेस क्लास से उनकी वैल्यूज़ को इनहेरिट कर लिया. सो उसके बाद हमारे पास खूब सारी इनहेरिटेड टेबल आ जाती थी. अब इशू यहाँ पे आता था कि हम उन इनहेरिटेड टेबल को बेसिकली कैसे स्टोर करें. सो वन ऑफ द way of representing inherited table may be to store inherited primary key attribute along with the locally defined attribute. In such a case, to construct the complete detail for a table, you need to take a join between inherited table and the base class table. But उसमें हम लोगों को क्या होता था कि हमने अपनी इनहेरिटेड टेबल को प्राइमरी की से बेसिकली प्राइमरी की से स्टोर करना स्टार्ट कर दिया. बट जब हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी एक कंप्लीट टेबल तो हमें क्या करना पड़ता है, जॉइन लगाना पड़ता था किसके, एक बेस क्लास के बीच में और इनहेरिटेड टेबल के बीच में. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच. सो द सेकेंड पॉसिबिलिटी हेयर वुड बी टू अलाउ द डेटा टू बी स्टोर्ड इन ऑल इनहेरिटेड एज वेल एज बेस टेबल्स. However, such a case will result in data replication. Also, you may find it difficult at the time of data insertion. Now, another implementation issues are, इसके साथ हमारे पास कुछ और भी इश्यूज आ जाते हैं जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं. What these implementation issues are: the database system consists of persistent data. To manipulate that data, one must either use data manipulation command or host language like C using embedded commands. However, a persistent language would require a seamless integration of language and persistent data. So, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को प्रेसिडेंस बनाना पड़ता था, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता था, उसकी स्टोरेज और एक्सेस को देखना पड़ता था. सो अ कॉम्प्लेक्स एक्सॉम ऑफ इंटरबेस रूल्स फॉर extended function dependencies also presented. Only after having a result is it possible to take about decomposition and normalization theory in a context of incomplete information. Finally, we show that there are several practical advantages in using null and a weak notation in the constant satisfaction. देखिए हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारे पास डिपेंडेंसी होती थी, हम उस डिपेंडेंसी को जब हम लोगों ने के पास डिपेंडेंसी थी और हमने उसको इम्बेड किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर के साथ, सो देयर आर डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंगल रिलेशन विच एट द टाइम ऑफ
बेसिकली हमने उसको डिफाइन किया एट द टाइम जो कंटेन करता था कुछ टपल्स को और कुछ नल वैल्यूज़ को। सो जो एक कुछ टपल और नल वैल्यू को कंटेन करता था, तो उसके ऊपर हम लोगों ने डिकम्पोजिशन और नॉर्मलाइजेशन थ्योरी को अप्लाई करके क्या लगा सकते थे, हम उसको OOMD निकाल सकते थे। सो RDBMS are that the system is simple, flexible and productive because the table are simple, data is easier to understand and communicate with each other। RDBMS क्या था, हमारे पास बहुत फ्लेक्सिबल होता था, सिंपल होता था, इसलिए हमें कम्युनिकेट कर सकते थे। So RDBMS are flexible because user do not have to use predefined key to input the information. Also RDBMS are more productive because SQL is easier to learn। OODM वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनशिप। देखिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट रिलेशनल DBMS एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS की बात करें तो बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट रिलेशनल DBMS। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं। सो वो सपोर्ट करता था हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को, वेयर एज जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था वो भी हमारे पास सपोर्ट करता था कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को, बट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रिलेशनल होता था वो हमारे पास बहुत पावरफुल होता था, पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, SQL की लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। कौन SQL की लैंग्वेज को बेसिकली सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल DBMS। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था वो हमें बेसिकली हायर इंटीग्रेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। सो जब हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल DBMS की बात करते हैं तो गुड प्रोटेक्शन है, उसमें डाटा की जो सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी रहती है, बट जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। सो वन ऑफ द मेजर असेस्ड हेयर इन SQL, that is SQL, although SQL is not as powerful as programming language, but it is none the less essentially a fourth generation language, thus it provide excellent protection of data from the programming errors। So the relational database model has a very rich foundation for the query optimization which helps in reducing the time taken to execute the query। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो हम उसमें क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन को भी लगा सकते थे। ऑप्टिमाइजेशन एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे हमें ऐसी क्वेरी को जनरेट करना है जिसकी कॉस्ट में हमारे पास मिनिमम होती है। सो जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS की बात करते हैं तो इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दस they are strong in programming. However, an error of the data type made by the programmer may affect many users. These databases are still evolving in the direction they have reasonable system to place. Now moving toward this particular slide, this shows user to spend more time inputting instead of learning. More importantly, RDBMS biggest advantage is easy with which user can create and access data and extend if it is needed. After the original database is created, new data category can be added without the existing application being changed। जब हम लोग रिलेशनल की बात करते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल डाटाबेस को चेंज किए बिना उसमें अपडेशन और ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। OODMBS has many advantages and benefits. First, object oriented is more natural way of thinking. Second, the defined operation of these type of system are not dependent on a particular database application running at a given time. Third, the data type of object oriented database can be extended to support complex data such as images, digital and audio video along with the multimedia operation। ये तो था बेसिकली हमारे पास OODBMS की जो हम बात करते हैं, द क्वेरिंग इज पॉसिबल बट समवट डिफ़िकल्ट टू यूज़। उसके अंदर हमारे पास क्वेरी पॉसिबल होती है, डिफ़िकल्ट होती है यूज़ को। सो सम एप्लीकेशन दैट आर primarily run in the RAM and are require large number of the database access with high performance may find such DBMS more suitable।
देखिए अब हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ऐसे डेटाबेस जिनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत हाई चाहिए तो उसके लिए हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस को यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट बेनिफिट ऑफ OODBMS आर रीयूजिबिलिटी। इसके बेनिफिट की बात करें तो रीयूजिबिलिटी है, स्टेबिलिटी है और रिलायबल है। अनदर बेनिफिट की बात करते हैं तो इजी टू एक्सेस है, ट्रांसफॉर्म इजीली कर सकते हैं, नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं, एसोसिएटिव एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड शोज question for all of you people at the very beginning. My first question is, what modification would be needed in the book class because the table created by above query। हम इसमें एक क्वेरी दे देते हैं, उस क्वेरी से हमारे पास एक टेबल क्रिएट की गई है। बेसिकली हम इसमें बताना चाहते हैं कि उस क्वेरी से आप क्या करना चाहते हो। सो द अबव टेबल क्रिएट, जो हमारे पास बुक क्लास है उसमें हम लोगों ने कुछ टेबल को रखा है, तो हम उसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं एज पर द क्लास। बुक है, बुक की आईडी है, बुक का नेम है, बुक का ऑथर है, बुक लाइब्रेरी नंबर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या थी। टुडे वी विल वाइंड अप आवर सेशन हियर। नेक्स्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग।